Thank you, Father. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Father, for this time, Lord Jesus. We come into your presence, Father. We bow down before you, Lord, Father. Oh, Lord, we are here to worship you, Lord. We are here to lift your name on high, Lord Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Oh, we worship you, Lord Jesus. Oh, Lord. Lord, we come to you, Lord Jesus. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. We come to you, Jesus. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, Lord, we fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Oh Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. And sin runs deep. Your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour
I need you, my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Yes, Jesus. Can we sing this one more time? Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Where sin runs deep, where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Yes, Jesus, we need you, Lord. Oh, we need you, Lord. Oh, we need you, Father. Come and change our lives with your power, Lord, with your grace, Lord. In your name, Father, we come into your presence. Jesus, Jesus. Oh, yes, Lord. Yes, Jesus. Oh, Lord. Oh, Jesus. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. You are the Word. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. The hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this.
beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Your sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. We worship you. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Death could not hold the weight or before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever.
worship you, Lord. Oh, we worship you, Jesus. Oh, Lord. Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर, जो मैं घेरी हुई है परमेश्वर पूरी रीति से। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपके चलन के लिए हमारे बीच में, हर एक परिवारों के बीच में परमेश्वर। हम सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, सारा जलाल सिर्फ आपका है परमेश्वर। Only you deserve the glory, you deserve the honor, for you are great and mighty and worthy to be praised, Father. We give it all to you, holding nothing back, Lord. We give it all to you. Be glorified, be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. What an opportunity to remember and thank God for what He has done in all these years. Come, join these online services and let's celebrate together and thank God together. Hallelujah! Praise the Lord! परमेश्वर को धन्यवाद इस पवित्र दिन के लिए, इस आराधना के लिए जिसमें हम सब सम्मिलित हैं और प्रभु की आशीषों को पा रहे हैं। आपने अभी अभी प्रोमो में देखा कि हमारी एनिवर्सरी की आराधनाएं बहुत निकट हैं, बल्कि इसी सप्ताह में 11, 12 और 13 सितंबर हम कलीसिया के 78 वर्ष के पूरे होने को सेलिब्रेट करेंगे। और हम सब के पास ये बहुत अच्छा अवसर है
3 आराधनाओं में हम बहुत से प्रभु के दासों से परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने जा रहे हैं। आपसे निवेदन ये है चर्च कि आप इन आराधनाओं के लिए प्रार्थना करते रहिए। दूसरा निवेदन ये है, अपने आप को खूब तैयार रखिए और इन आराधनाओं में आप समय से जुड़ें। विचार ये है कि क्योंकि YouTube पर आराधना है, हम कभी भी देख सकते हैं, तो मैं सोचता हूँ उससे बेटर रहेगा हम बजाय इसको एक प्रोग्राम की तरह वॉच करें, उससे अच्छा हम एक आराधना के रूप में इसमें जुड़ें। समय से जुड़ पाएँ तो बहुत अच्छा होगा और हम सब एक साथ मिलकर ही, भले ही अपने अपने स्थानों पर हैं, लेकिन जब हम एक साथ मिलकर कलेक्टिवली परमेश्वर की आराधना करेंगे, कलेक्टिवली मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अपनी कलीसिया के लिए आशीषों को मांगेंगे, सोचिए वो कितना सुंदर होगा जब एक ही समय में अलग अलग जगहों से हमारी आवाज़ें परमेश्वर तक पहुंचेंगी, धन्यवाद परमेश्वर तक पहुंचेगा। मैं सोचता हूं स्वर्ग हमारे बीच में उतर आएगा। आमीन। सो प्लीज रोज शाम 6:30 बजे अगर आप समय से जुड़ें तो बहुत हम आभारी होंगे और मिलकर के हम यीशु मसीह की आराधना इसी ऑनलाइन माध्यम से करेंगे। यूट्यूब चैनल पर ही होगी। ध्यान रहे कोई चर्च ना पहुंचे, ये आराधनाएं यूट्यूब पर ही हो रही हैं। सो रोज शाम 6:30 बजे 11, 12 और 13 हमारे पास ये आराधना करने का समय होगा। दूसरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि 13 तारीख रविवार है, लेकिन सुबह हमारी आराधना YouTube पर नहीं होगी। सो आप प्लीज़ सुबह YouTube पर आराधना को सर्च ना करें, लेकिन शाम को 13 तारीख हम 6:30 बजे मिलकर के परमेश्वर की आराधना करेंगे। सो इन सूचनाओं को ज़रूर याद रखिए, खासतौर से इन सभाओं के बारे में। ये जो प्रोमो आपने देखा इसको भी तमाम लोगों तक आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिन्हें भी आप चाहते हो कि इस सभा में वो जुड़ें, चाहे आपके परिवार के लोग हों या अन्य आपके मित्र लोग हों। आप इसको ज़रूर लोगों तक सूचित करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ करके आशीषित हो सकें और कलीसिया के साथ मिलकर सेलिब्रेट कर सकें। साथ ही आज क्योंकि मंथ का पहला रविवार है, आज हम सबके पास अवसर है प्रभु की मेज़ में हिस्सा लेने का, प्रभु भोज में हिस्सा लेने का। सो हम आशा करते हैं जितने विश्वासी लोग हैं आपने अपने घर में रोटी और जूस का इंतज़ाम रखा होगा, क्योंकि इसके बाद संदेश और संदेश के ठीक बाद हमारे पास अवसर होगा, हम मिलकर प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकेंगे। सो अब समय है हम परमेश्वर के वचन में चलें और आज पास्टर सैमुअल नेथन परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लेकर आएंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर पवित्र दिन के लिए, और प्रभु का लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें इस नए माह में लेके आया और इस नए मंथ के पहले संडे हम एक बार फिर एक साथ मिलकर इस ऑनलाइन परमेश्वर की आराधना कर सके। हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। हम जल्दी से परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे और आज हम भजन संहिता 23 की पढ़ेंगे, कुछ अध्ययन वहाँ से करेंगे, कुछ चीज़ों को वहाँ से सीखने की कोशिश करेंगे। जब मैं भजन को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे एक नए दृष्टिकोण से, एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से इस भजन को सिखाना शुरू किया। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया, मुझे सिखाना शुरू किया कि ये भजन दाऊद का प्रकाशन है परमेश्वर के बारे में। यह भजन दाऊद का प्रकाशन है स्वयं के बारे में। अगर हम इस भजन के एक एक हिस्से को ध्यान से देखें, हम कोशिश करेंगे 2-3 आयतों को मनन करने के लिए, लेकिन अगर इस भजन को हम ध्यान से पढ़ें और एक एक लाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो दाऊद अपने प्रकाशन को जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसे यहोवा के बारे में मिला, उसको वो यहाँ पर लिखता है। इस समय तक दाऊद का अभिषेक हो चुका था। इस समय तक उसने भालू को भी मार दिया था। इस समय तक उसने शेर को भी मार दिया था, गोलियत को भी मार दिया था, और हर जगह उसने एक ही चीज देखी और एक ही चीज का अंगीकार किया कि यहोवा ने उसको बल दिया, यहोवा ने उसको सामर्थ्य दी, यहोवा उसके साथ साथ चलता था। जब उसने हर जगह यहोवा के हाथ को देखा, उसे बहुत अच्छे दिनों को भी सामना करना पड़ा, बहुत कठिन दिनों का भी सामना करना पड़ा, और हर दिनों चाहे अच्छे दिन हो चाहे कठिन दिन हो, दाऊद ने अपने साथ यहोवा को देखा। दाऊद ने अपने साथ यहोवा के बड़े हाथ को देखा। दाऊद ने अपने साथ यहोवा की सहायता को देखा, और सब कुछ देखने के बाद दाऊद के अंदर एक प्रकाशन आता है परमेश्वर के बारे में, और दाऊद उस प्रकाशन को बोलता है। भजन संहिता
23 उसकी पहली आयत में बोलता है, यहोवा मेरा परमेश्वर है। द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। हालेलुया। ओ, जिस दिन हमें यह प्रकाशन मिल जाता है, दाऊद का यह व्यक्तिगत प्रकाशन था। दाऊद ने अपने जीवन में जब यहोवा के हाथ को देखा, उसने देखा कैसे परमेश्वर हर जगह उसकी सहायता कर रहा है। चाहे भालू का सामना करना हो, चाहे गोलियत का सामना करना हो, चाहे लोगों का सामना करना हो, हर जगह उसने देखा कैसे परमेश्वर एक चरवाहे के रूप में उसकी सहायता करता है। और उस दिन दाऊद को यहोवा के बारे में प्रकाशन आता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। दाऊद भी एक चरवाहा था। दाऊद जब अपनी मुट्ठी भर भेड़ों की रखवाली करता था, उनको चराने के लिए अच्छे स्थानों पे ले जाता था, उनकी देखभाल करता था, उनकी सुरक्षा करता था, ताकि कोई भी जन उन भेड़शाला में से एक भी भेड़ चुरा ना सके। और उसी तरह दाऊद ने यहोवा को देखा अपने जीवन में, और उसने उस दिन बोला, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मुझे संभाल के आगे आगे ले जाता है, यहोवा मेरी रक्षा करता है। अच्छे दिनों में यहोवा मुझे हरी हरी चराइयों के स्थान पे ले जाता है। जब कठिन दिन आते हैं तो वो मुझे अपने हाथों के तहत संभाल के रखता है। दाऊद को व्यक्तिगत प्रकाशन अपने परमेश्वर के बारे में मिल गया, और जिस दिन उसे अपना परमेश्वर के बारे में वो व्यक्तिगत प्रकाशन मिल जाता है, वो अंगीकार करता है, वो परमेश्वर को भी बताता है और स्वयं को भी बताता है कि यहोवा आप मेरे चरवाहा हैं। Oh, there is a beautiful relation as a sheep and a shepherd between David and God. और वही दाऊद अपने बारे में भी एक प्रकाशन जान जाता है, अपने बारे में भी जान जाता है कि मात्र मैं एक भेड़ हूं यहोवा की भेड़शाला में। वो यहोवा मेरा चरवाहा है, वो यहोवा मेरा प्रभु है जो मुझे संभाल के रखता है। जिस दिन दाऊद को परमेश्वर के बारे में प्रकाशन मिला और जिस दिन दाऊद को स्वयं के बारे में प्रकाशन मिला, वो आनंदित हो गया, वो जय जयकार करने लगा। वो परमेश्वर के प्रकाशन से भर गया और भरने के बाद अंगीकार करता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। चर्च, आज एक सवाल आपके से है, परमेश्वर आपके लिए कौन है? डू यू हैव अ पर्सनल रेवलेशन ऑफ गॉड फॉर योरसेल्फ? क्या परमेश्वर का व्यक्तिगत प्रकाशन आपको आपके बारे में है? परमेश्वर आपके लिए कौन है? अगर हम यशाया खोलें, यशाया उसका 40वां अध्याय, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 11, यशाया 40 और उसकी 11वीं आयत। मैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पे लिखा है, ही विल फीड हिज फ्लॉक्स लाइक अ शेपर्ड। आगे लिखा है, he will gather the lambs in his arm and he will carry them in his bosom, will gently lead those that have their young. हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ता हूं, वो चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वो भेड़ों के बच्चों को अंकुआर के में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। यहां पे एक शेपर्ड और उनकी भेड़ों के बारे में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। यहोवा को यहां पर एक चरवाहे के रूप में दिखाया जा रहा है और बाइबल कहती है, ही विल फीड हिज फ्लॉक्स लाइक अ शेपर्ड। वो अपनी भेड़शाला में की जो भेड़ें हैं उन्हें चरवाहे के रूप में उन्हें खिलाएगा पिलाएगा, उनको जो भोजन की जरूरत है वो उनको देगा। लेकिन आगे दो हिस्सों में, आगे इसी में लिखा है, दो बात लिखी है, he will gather the lambs in his arms. वो अपनी भेड़ों को अपने बाजुओं में, वो अपनी भेड़ों को अपनी सुरक्षा में, वो अपनी भेड़ों को अपनी भेड़शाला में लिए हुए रखेगा। ये हमारे उद्धार को दर्शाता है, ये हमारे सैल्वेशन को दर्शाता है। हम सब अलग अलग मार्गों में चले गए थे, हम सबों ने पाप का रास्ता चुन लिया था, हम सबों ने संसार को की चकाचौंध में खो गए थे, लेकिन यहोवा का भुजबल हम पर प्रकट हुआ। ओ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसका हाथ हम तक आया और हमने जिस दिन बोला, यीशु मसीह हमारे गुनाहों को क्षमा कर, उस दिन हमारे हाथ को पकड़ के परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपनी भेड़शाला में हमें बुला लिया, अपने हाथों में हमें छुपा लिया, ओ अपनी सुरक्षा में हमें रख लिया और हमें उद्धार दे दिया। बाइबल कहती है, he will gather the lambs
in his arms. और आगे लिखा है, he will carry them in his bosom. वो हमें केवल अपने भेड़शाला में ही नहीं रखेगा, लेकिन हमें अपने में छिपा भी लेगा। जब हमारे अंदर से स्वयं का सेल्फ जाता है, जब हमारे अंदर से हर एक सेल्फिशनेस चला जाता है, जब हमारे अंदर से हर एक फ्लैशली डिजायर्स चली जाती है, हम प्रभु यीशु मसीह में खो जाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में एक हो जाते हैं। जिसने पुत्र को देखा उसने पिता को देख लिया, क्योंकि पुत्र और पिता आपस में एक हैं। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें यहां सिखाता है कि परमेश्वर केवल हमारा उद्धार ही नहीं करेगा, परमेश्वर केवल हमें पापों से छुड़ा के अपनी भेड़शाला में ही नहीं बुलाएगा, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर हमें अपने में एक कर लेगा। दाऊद को वही तो प्रकाशन मिल गया। दाऊद ने देखा हर जगह परमेश्वर मेरे साथ है। एक चरवाहे के रूप में उसने मुझे केवल अपने हाथों में बुला के सुरक्षित ही नहीं किया, लेकिन वो मेरे में होकर एक हो गया है। नाउ आई एंड गॉड आर वन बिकॉज ही इज माई शेपर्ड। वो मेरा चरवाहा है और मैं उसकी भेड़ हूं, वो भेड़ जो उसके भुजम में, जो उसमें पाई जाती है। चर्च विश्वासियों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हमें उद्धार पाए हुए हो सकता कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल हो गए हों, लेकिन क्या हम उसके अंदर एक है? क्या हम परमेश्वर में एक है? क्या हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह में एक हो गई है? क्या हमारे फ्लैशली डिजायर्स, क्या हमारी स्वयं की इच्छा प्रभु यीशु में जाती रही? अब परमेश्वर मुझ में और मैं परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाया जाता हूं। ओ भजन या सॉरी यशाया 40 उसके 11 में क्या लिखा है? then in his bosom he will carry us. He will carry us. वो हमें लेके चलेगा अपने अंदर। जब मैं ये वचन तैयार कर रहा था, परमेश्वर ने 2 सवाल मुझसे पूछा और बोला यही 2 सवाल कलीसिया से पूछना। पहला परमेश्वर ने जब मुझसे सवाल करा, डू यू वॉन्ट टू कैरी जीसस इन योर लाइफ? डू यू वॉन्ट टू कैरी जीसस इन योर लाइफ? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कैरी करना चाहता हूं, लेके चलना चाहता हूं? फिर दूसरा सवाल परमेश्वर की आत्मा से ने मुझसे पूछा, डू यू वॉन्ट जीसस टू कैरी यू? क्या तुम चाहते हो प्रभु यीशु मसीह तुमको लेके चले? और आज यही 2 सवाल परमेश्वर ने मुझसे पूछे और आज यही 2 सवाल परमेश्वर आपसे पूछता है। क्या आप यीशु मसीह को लेके चलना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपको लेके चले? कई बार हम कहते हैं यीशु मसीह हम वहां जा रहे हैं, आप ये करिएगा वो करिएगा, और कई बार हम परमेश्वर क्या चाहता है हम ये क्या बोलें, यीशु मसीह हम वहां जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा उन स्थानों में पूरी हो सके। यशाया में लिखा है वो हमें केवल अपने हाथों में सुरक्षित ही नहीं रखेगा, लेकिन आगे क्या लिखा है? ही विल कैरी अस। चर्च विश्वासियों, वो केवल आपको उद्धार ही नहीं देना चाहता है, लेकिन ही वॉन्ट्स टू कैरी यू इन हिज बूज़म। वो चाहता है कि मैं और आप उसकी पहचान में एक हो जाएं। वो चाहता है कि हम परमेश्वर में एक हो जाएं। और जिस दिन दाऊद को यह प्रकाशन मिला यहोवा के बारे में, और जिस दिन दाऊद को यह प्रकाशन मिला अपने बारे में कि मैं एक भेड़शाला में भेड़ के सिवा कुछ नहीं हूं और उस भेड़शाला का चरवाहा यहोवा है, ओ जिस दिन दाऊद परमेश्वर से भर गया, उसके प्रकाशन से भर गया कि वो उसके लिए कौन है, और उस दिन दाऊद अंगीकार करता है, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। यहोवा मेरा चरवाहा है। कलीसिया परमेश्वर आपको केवल परमेश्वर आपको उद्धार देना चाहता है, आपको पापों से छुटकारा देना चाहता है, लेकिन आगे वो अपने आप में आपको रखना चाहता है और आपको अपने में रखना चाहता है। वो आपको अपने में कैरी करना चाहता है। द डिजायर ऑफ द गॉड, परमेश्वर की लालसा हर एक विश्वासी के लिए एक यही है, दैट वी शुड बी वन इन क्राइस्ट जीसस। हम प्रभु यीशु मसीह में एक हो जाएं। आइए आगे चलते हैं। आगे चल गए तो कुछ चीजें हमें और समझ में आएगी। अगर हम फिलिपियंस उसका 2 अध्याय और 7वीं आयत खोलें, फिलिपियों 2 अध्याय और 7वीं आयत, वहां पे यीशु मसीह के बारे में लिखा है। ऐसा लिखा है यीशु मसीह के बारे में, अपने आप को शून्य कर दिया।
यीशु मसीह के लिए लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया। वो जो पिता का इकलौता पुत्र था हमारे और आपके लिए, वो मनुष्य बनकर इस संसार में आया। अगर हम इसी की 6 आयत को पढ़े, वहां लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझी। जीसस गेव एवरीथिंग। यीशु मसीह ने अपना सब कुछ त्याग दिया, इतना त्याग दिया कि उसने अपने आप को पिता के हाथ में दे दिया और वो शून्य बन गया, वो खाली हो गया अपने आप से और परमेश्वर को अपने अंदर रखा और परमेश्वर की इच्छाओं को अपने अंदर रखा और परमेश्वर की इच्छाओं में चलना शुरू किया। आगे अगर हम इसी की 7वीं आयत को पढ़ें, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर में शून्य कर दिया और परमेश्वर पिता को अपने अंदर धारण कर दिया। यही तो प्रकाशन दाऊद को मिल गया था और उसने बोला, यहोवा मेरा चरवाहा है। ओ, जब यीशु मसीह ने अपने आप को खाली किया, ओ परमेश्वर से भर गया। यीशु मसीह ने बोला, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। ओ, आई डिपेंड ऑन माय फादर फॉर एवरीथिंग। मैं हर बात के लिए अपने परमेश्वर पर, ओ जो मेरा पिता है, जो कलीसिया आपका पिता है, जो आपका भी परमेश्वर है, यीशु मसीह ने बोला, हर बात के लिए मैं उस पर डिपेंड करता हूं। ओ, शून्य होता चला गया, नम्र होता चला गया, दीन होता चला गया और इतना दीन हो गया कि उसने मेरे और आपके लिए क्रूस की मृत्यु सह ली। ओ, उसने कहीं भी नहीं बोला क्योंकि परमेश्वर मैं क्रूस की मृत्यु नहीं सहूंगा, लेकिन बाइबल कहती है वो यहां तक दीन हो गया कि उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया और एक ही बात बोली, परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो सके। चर्च, आज परमेश्वर यही तो चाहता है अपने बच्चों से। कलीसिया, आपसे परमेश्वर यही तो चाहता है कि हम अपने स्वयं से, अपने सेल्फिश डिजायर्स और नेचर्स और ग्रीड और अपनी चीजों से खाली हो जाएं और हर बात में, हर समय, हर जगह परमेश्वर पे डिपेंड होने वाले हो जाएं। उसका वचन ही तो हमसे क्या कहता है, डोंट लीन ऑन योरसेल्फ। अपने पे भरोसा, अपनी बातों पे, अपने सामर्थ में, अपनी ताकत पे भरोसा मत करो, ना तो बल से और ना सामर्थ से, लेकिन हर बात में परमेश्वर की आत्मा पर डिपेंड होना सीखिए। हम कठिन दिनों में चल रहे हैं, आने वाले दिन कैसे होंगे, बाइबल के आधार पर हम देखें तो आने वाले दिन बहुत कठिन हैं। हमारे विश्वास का परखा जाना होगा, हर बात में हमें परमेश्वर पर डिपेंड करना सीखना होगा, लेकिन हम कैसे सीखेंगे अगर हम परमेश्वर से भरे नहीं जाएंगे? हम कैसे सीखेंगे अगर हम हर बात पे उसके ऊपर डिपेंड करना नहीं सीखेंगे? और हम डिपेंड करना कैसे सीखेंगे? जब हम अपने बल से और अपनी सामर्थ्य से अपने आप को खाली करेंगे, जब हम अपने आप को अपने मैं से खाली करेंगे और हम एक ही बात बोलेंगे, लॉर्ड फिल मी विथ योरसेल्फ। परमेश्वर मुझे अपने आप से भर दे, मुझे अपने आप से भर दे। मैं अपने आप में, मेरा स्वयं खाली हो जा। हमें गीत को गाते हैं ना, मैं घटूं परमेश्वर तू बढ़े मैं घटूं, यहोवा तू बढ़े मैं घटूं। बहुत ज़रूरी है हम अपने स्वयं में घटते चले जाएं। बहुत ज़रूरी हमारा सेल्फिश नेचर, हमारी सेल्फिश प्रेयर्स, हमारी सेल्फिश मिनिस्ट्री, हमारी सेल्फिश काउंसलिंग, सब कुछ जो मेरे मैं में है वो सब चाहता रहे और कलीसिया हम प्रभु यीशु मसीह में पाए जाएं और यीशु मसीह हम में पाए जाएं। पौल कहता है गलतियों, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 2 में, मुझे बहुत अद्भुत लगता है ये वर्स, गलतियों उसका 2 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में पौल अपने बारे में कुछ कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा। पौल क्या कह रहा है? आई हैव नो आइडेंटिटी, आई हैव ओनली वन आइडेंटिटी। मेरी सिर्फ एक ही पहचान है कि प्रभु यीशु मसीह मुझ में पाया जाता है।
I am dead for myself. I am dead for my desires. I am dead for my selfish, fleshly, worldly desire. मैं संसार और संसार की बातों के लिए मर गया। यहां लिखा है, मैं फिर से पढ़ता हूं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस की मृत्यु आसान नहीं है। क्रूस की मृत्यु में दर्द है, अकेलापन है। क्रूस की मृत्यु में पीड़ा है। क्रूस की मृत्यु में सताव है। बहुत से लोग आपको नहीं समझेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। हो सकता है क्रूस की मृत्यु के समय लोग आपको छोड़ दें, वो आपके अपने कहें मैं तुम्हें नहीं पहचानता, नहीं जानता। लेकिन बहुत ज़रूरी है हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाएं। जैसे पौल कहता है, मैं क्रूस के चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में कब जीवित होता है? जब हर समय मैं मसीह के चलाए चलता हूँ। मसीह मुझ में जीवित है जब रोज़ सुबह उठ के मेरे मन में, मेरी कल्पनाओं में सिर्फ एक ही बात आती है, थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस डे, थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस डे। जब मैं सुबह उठ के दिन भर परमेश्वर से एक ही बात बोलता हूँ, लॉर्ड लेट योर विल बी डन। मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर आपकी सिद्ध इच्छा पूरी होती चली जाए। और जब परमेश्वर की सिद्ध इच्छाएं हमारे जीवनों में और हमारे जीवनों से पूरी होना शुरू हो जाती है, हम मसीह में धीरे धीरे कर कर हम मसीह में बदलते चले जाते हैं। एक दिन में यह बदलाव नहीं आएगा। हमें धीरे धीरे महिमा से महिमा, महिमा से महिमा में बदलते चले जाएंगे। जो थोड़ी थोड़ी बातों में विश्वास योग होगा, छोटी छोटी बातों में विश्वास होगा, परमेश्वर में वो परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की महिमा में वो बदलता चला जाएगा। आज विश्वासियों, परमेश्वर हमारे जीवनों में हमारे भीतर आना चाहता है। आज वो चाहता है कि हम केवल उसके हाथों में नहीं रहें, उसके हाथों में ही नहीं पाए जाएं। आज परमेश्वर हमें अपनी भुजम में, अपने अंदर कैरी करना चाहता है। वो चाहता है कि हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह में खो जाए और यीशु मसीह की पहचान हमारे अंदर से, हमारी बातों से, हमारे नेचर से, हमारे कैरेक्टर से दिखाई पड़ने लगे। जब लोग हमें देखें तो वो हमें नहीं लेकिन यीशु मसीह को देखें। जब लोग हमें सुने तो वो हमें नहीं लेकिन यीशु मसीह को सुने। अभी कुछ दिन पहले मैं एक सिस्टर के बारे में गवाही सुन रहा था, मार्था विंग्स, और उन्होंने एक ऐसी प्रार्थना करी, मैंने भी किसी से सुना है। उन्होंने ऐसी प्रार्थना करी, यीशु मसीह मैं आपके स्वरूप में बदलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट जीसस यू शुड कैरी मी। यीशु मसीह आप मुझे लेके जाएं। जब लोग मुझे देखें तो यीशु मसीह आपको देखें। और एक दिन परमेश्वर का आत्मा उनके पास आया। वो अच्छी सेवक परमेश्वर की दासी थी, सेवा करती थी, मिनिस्ट्री में इधर उधर जाती थी। और परमेश्वर की आत्मा ने उनसे बोला, डू यू वॉन्ट मिनिस्ट्री और डू यू वॉन्ट जीसस? तुम्हें सेवकाई चाहिए कि यीशु मसीह चाहिए? उन्होंने बोला, मार्था विंग्स ने ऐसा बोला, मुझे यीशु मसीह चाहिए। और जिनसे मैं सुन रहा था उन्होंने मुझे ऐसा बताया, धीरे धीरे उनकी सेवकाई कम होती गई और यीशु मसीह उनके अंदर दिखाई देने लगा। वो एक बाइबल कॉलेज में थी, कई बार वो बर्तनों को धोती थी और जब लोग उधर से गुजरते थे लोगों को दिखता था कि यीशु मसीह बर्तन धो रहा है। कई बार वो सड़क पे चलती थी और लोग कहते थे, अरे यीशु मसीह कैसे सड़क पे चलता? जब फिर वो गौर से देखते थे कहते थे, ओह ये तो मार्था विंग्स है। उनकी मिनिस्ट्री कम होती चली गई लेकिन यीशु मसीह उनके अंदर से दिखाई देने लगा। जब वो बर्तन धो रही थी, गौर करिएगा, मिनिस्ट्री नहीं कर रही थी, जब वो बर्तन धो रही थी, लोग जब वहां से गुजरते थे लोगों को यह दिखाई पड़ता था कि यीशु मसीह बर्तन धो रहा है। कई बार हम सोचते ना, मिनिस्ट्री 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 इज एवरीथिंग। नो, कैरिंग जीसस। और मैं अगर ऐसा बोलूं, व्हेन जीसस कैरी अस, जब यीशु मसीह हमें लेके चलता है, वो सबसे बड़ी सेवकाई है जिस सेवकाई के लिए परमेश्वर ने कलीसिया आपको और मुझको बुलाया है। पौल क्या कहता है? आई लिव नो मोर, मैं अब जीवित नहीं रहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया। ओ, मुझे भी दर्द का सामना करना पड़ा, मुझे भी अकेलापन का सामना करना पड़ा, लोगों ने भी मेरा विरोध किया, मेरे फ्लैश ने मेरा विरोध किया, मेरी डिजायर्स ने बोला कि क्यों
लालसाओं को पूरी नहीं करता हूं, लेकिन सबको मैंने नो किया और मैंने जीसस को यस किया। अब मैं जीवित नहीं रहा। पॉल क्या कहता है? आई लिव नो मोर। अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर मुझ में जीवित है। इफिशियंस 3:14, इफिसियों 3:14 में पॉल कहता है, उस पिता के आगे मैं घुटने टेकता हूं। इफिशियंस 4 में लिखा है, ओ मैं तो परमेश्वर का बंदी हूं, मैं परमेश्वर का बंदी हूं। ओ आई हैव नो डिजायर। जो परमेश्वर की इच्छा है सिर्फ वो ही मैं पूरी करता हूं। किसी भी जगह, पॉल कहता है, किसी भी जगह मैं अपनी लालसाओं को पूरी नहीं करता हूं। मैंने उस परमेश्वर के आगे घुटने टेक दिए, मैं उस परमेश्वर का बंदी बन गया, क्योंकि जब मैंने उस परमेश्वर को जान लिया वो कितना भला और उत्तम है। और यही प्रकाशन दाऊद को मिल गया। ओ जिस दिन दाऊद को यह प्रकाशन मिला वो चुप ना रह पाया। ओ भजन संहिता 23 की 23 की 6 आयत परमेश्वर के प्रति उसका प्रकाशन और उसका अंगीकार है। ओ दाऊद खुश हो गया और बोलने लगा, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है। ओ उसने मुझे जंगल में बचा के रखा। और जब मैं शेर का सामना कर रहा था उसने मुझे डिवाइन स्ट्रेंथ दी कि मैंने शेर का सामना किया, अपनी भेड़ को भी बचाया, और जब शेर ने अटैक किया मैंने शेर को भी मार दिया। गॉड गेव मी दैट पावर। परमेश्वर ने दाऊद को वो सामर्थ कहां दी? परमेश्वर का वो प्रकाशन दाऊद ने कहां पाया? जब वो अकेले जंगल में परमेश्वर की आराधना कर रहा था। ओ उसने पर्सनल रेवलेशन ऑफ गॉड को पा लिया। विश्वासियों, यह अच्छा समय है, ये अच्छे दिन हैं जब हम ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के व्यक्तिगत रेवलेशन को पा सकते हैं। और परमेश्वर का व्यक्तिगत रेवलेशन कब पाएंगे? जब हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की संगति में व्यक्तिगत समय बिताएंगे, उसकी आराधना, उसकी जय जयकार करने के लिए। जब शेर सामने आएगा, जब भालू सामने आएगा, जब गोलियत सामने आएगा, परमेश्वर आपको डिवाइन स्ट्रेंथ देगा कि आप उन सबों का सामना करना पड़े। यू जस्ट नीड अ रेवलेशन ऑफ गॉड फॉर योरसेल्फ। आपको मसीह का प्रकाशन अपने जीवन के लिए चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये प्रकाशन जब हम परमेश्वर का व्यक्तिगत रूप में अपने लिए प्राप्त करेंगे, यह प्रकाशन हमें संभाल के रखेगा, यह परमेश्वर का प्रकाशन हमें थाम के रखेगा, और फिर हम कह सकेंगे मुझे कुछ घटी नहीं है। दाऊद ने बोला, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं है। कई बार इस वर्ड्स की, इस लाइन को हम लेके फाइनेंशियली देखते हैं। यस, गॉड हैज अ पर्पस दैट वी शुड लिव अ ब्लेस्ड लाइफ। परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पिता प्रभु यीशु मसीह में होके पूरी करेगा। लेकिन ये जगह पर, इस जगह पर दाऊद क्या कह रहा है? मुझे परमेश्वर की और परमेश्वर के प्रकाशनों की घटी नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह की घटी नहीं है, परमेश्वर के प्रोविजंस की घटी नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर में पाया जाता हूं और परमेश्वर मुझ में पाया जाता है। अगर हम जकई के बारे में देखें, वो छोटा जकई पेड़ के ऊपर चढ़ा था और यीशु मसीह ने बोला, जकई आज मुझे तुम्हारे घर जाना है। ओ जकई खुशी के मारे जल्दी से नीचे आया और यीशु मसीह को लेके आगे आगे चलने लगा। जैसे ही जकई अपने घर में पहुंचा, वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से इतना भर गया, उसे अपनी गलतियां दिखाई देने पड़ लगी, उसे अपनी कमियां दिखाई देने लगी। उसने देखा कि कैसे उसने लोगों को धोखा दिया, अपने भाइयों को गलत तरीके से उनके पैसों को हड़प लिया। वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से क्या कहता है? आई एम रेडी टू गिव एवरीथिंग। जकई ने बोला, मैं सब कुछ लौटाने को तैयार हूं। अगर किसी से मैंने गलत रीति से लिया है उसको भी मैं कई गुना लौटाने को तैयार हूं। जकई खाली होना शुरू हो गया, जकई एम्प्टी होना शुरू हो गया। जिन भाइयों से उसका बैर था, जिन परिवार के लोगों से उसका बैर था, जो समाज के लोगों को उसने धोखा दिया था, सबको वो लौटाना शुरू करता है। लौटाने का अर्थ पता क्या है? सबसे कहने लगता है जकई ऐसा कहता है, आई एम सॉरी आई चीटेड यू, आई एम सॉरी आई चीटेड यू। मुझे क्षमा कर, मैंने आपको धोखा दिया और आपके पैसे को हड़प लिया। ये आपका पैसा है,
और मैं बढ़ा के इन पैसों को दे रहा हूं। जब हम यीशु मसीह से बढ़ जाते हैं ना, जब यीशु मसीह के स्वभाव में परिवर्तित होने लग जाते हैं, जिनसे हमारा बैर है उनसे हम एक होने लग जाते हैं। जब यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है ना, तो हम लोगों के बारे में बुराइयां नहीं करते, लेकिन लोगों के लिए आंसू और उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर जाते हैं। जब हम यीशु मसीह से भरना शुरू हो जाते हैं ना, तो यीशु मसीह केवल हमारे घर ही नहीं आता, लेकिन यीशु मसीह हमारे घर के लिए क्या कहता है? आज इस घर में उद्धार आ गया है। उद्धार यहोवा से है, उद्धार यीशु मसीह के नाम से है। उस घर के ऊपर अगर किसी ने अपना अधिकार कर लिया था उस दिन, जक्कई के जीवन में अगर किसी ने अपना अधिकार कर लिया था उस दिन, तो वो यीशु मसीह ने कर लिया था। क्योंकि जैसे ही यीशु मसीह उसके घर की तरफ जा रहा था, जक्कई ने अपने आप को पाप से, लोगों के अनफॉरगिवनेस से अपने आप को खाली करना शुरू किया और उससे सबसे जाके क्षमा मांगी। जब हम परमेश्वर के पुत्र से भर जाते हैं, जब हमें परमेश्वर का प्रकाशन मिल जाता है, तो हम परमेश्वर की सी चाल और परमेश्वर की सी बोली बोलने लग जाते हैं। तभी तो दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं है। दाऊद यहाँ पैसे के बारे में नहीं बोल रहा है, दाऊद यहाँ पे पवित्र आत्मा की सामर्थ के बारे में भी नहीं बोल रहा है, दाऊद यहाँ पे परमेश्वर के बारे में बोल रहा है कि जिस परमेश्वर ने मुझे हर एक समय बचा के रखा, जिस परमेश्वर ने मुझे बल दिया, आज मैं उस परमेश्वर से भरा हूं और इतना भरा हूं, आई एम सो रिच इन गॉड that I lack nothing। मैं परमेश्वर की संपन्नता से, उसकी धार्मिकता से, उसकी पवित्रता से इतना भर गया हूं कि अब मुझे संसार की किसी वस्तु की घटी कमी नहीं होती। What a joy, what a revelation David got for himself। आज इसी प्रकाशन को हमें और आपको भी जरूरत है। कलीसिया यीशु मसीह में बढ़ते जाएं, यीशु मसीह में बदलते जाएं। केवल यीशु मसीह में को उद्धार करके वहां रुक मत जाएं, लेकिन यीशु मसीह में खो जाएं, यीशु मसीह में एक हो जाएं। ओ हम भी कह सके पौल के समान, आई लिव नो मोर, अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर मुझ में जीवित है। आइए इस जल्दी से भजन संहिता और उसका 23 उसकी हम दूसरी आयत को देखते हैं। हम सारी 6 आयत को तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन आइए हम दूसरी आयत को देखते हैं। दूसरी आयत में भजन संहिता दूसरी आयत में लिखा है, ही मेक मी टू लाई डाउन इन ग्रीन पास्चर, ही मेक्स मी टू लाई डाउन। ओ हमारा परमेश्वर हमें हरी हरी चराइयों की तरफ लेके चलता है। भजन संहिता लिखा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। मैं भेड़ के बारे में पढ़ रहा था, गूगल कर रहा था कि भेड़ें कब बैठती हैं, और वहाँ पे कई पॉइंट्स हैं, मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स को लूँगा। भेड़ें तब बैठती हैं, पहली चीज़, जब उनके हृदय में किसी प्रकार का डर नहीं है कि कहीं से कोई जानवर, कहीं से कोई दुश्मन आएगा और उन पर अटैक करेगा और उन्हें मार डालेगा। दूसरी चीज़, जब भेड़ों के अंदर, भेड़ों के पेट भरे होते हैं। पहली चीज़ नो फियर, दूसरी चीज़ जब उनकी भूख मिट जाती है। परमेश्वर आपको ऐसे स्थानों पे ले जाएगा जहां पे भय नहीं है, जहां परमेश्वर आपको ऐसे स्थानों पे ले जाएगा जहां परमेश्वर की शांति पाई जाती है, क्योंकि वह परमेश्वर के हाथों से निकलकर परमेश्वर के भूसम में आ गए हैं। अब आपने अपनी पहचान खो दी है, अब आप परमेश्वर की पहचान में होकर आगे चल रहे हैं। और परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है, ही मेक मी लाई डाउन इन ग्रीन पास्चर, ही लीड्स मी बाय साइड स्टिल वाटर। जब हम परमेश्वर में से भर जाते हैं, ओ जब हम परमेश्वर में बदलते चले जाते हैं, कलीसिया वो हमें केवल हरी हरी स्थानों पे, हरे स्थान मतलब फर्टाइल एरिया में, हरे स्थान मतलब जहाँ पे जीवन पाया जाता, जहाँ फ्रेशनेस है, जहाँ पे नया प्रकाशन है, ओ जहाँ आत्मा का बल पाया जाता, जहाँ परमेश्वर के संग हम रोज बातें कर सकते। ग्रीन पास्चर्स, ही विल लीड अस टू स्टिल वाटर। सुखदायी जल के झरने के पास हमें लिया चलता है। कौन आपको लेके चलेगा? परमेश्वर। कौन आपको हरी हरी स्थानों पे लेके जाएगा? परमेश्वर। क्यों लेके जाएगा? क्योंकि अब मैं जीवित ना रहा, लेकिन परमेश्वर मुझ में जीवित पाया जाता है। परमेश्वर ने मेरे जीवन के ऊपर कंट्रोल कर लिया है और मैंने बोला, लॉर्ड लीड मी, लॉर्ड टेक कंट्रोल ओवर माय लाइफ। विश्वासियों, कलीसिया के लोगों, बहुत जरूरी है हम मसीह में बदलते जाएं। हमारी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई प्रभु यीशु मसीह हो जाए। हम सिर्फ और सिर्फ उसके दाहिने धर्मी हाथ के नीचे पाए जाए, अर्थात इन हिज कंट्रोल, इन हिज कंट्रोल। उसके वचन के आधार पर हम चलने वाले हो सके।
बाइबल में एक और व्यक्ति है जो हरी हरी चराइयों को जिसने देखा और उसकी तरफ आकर्षित हो गया, जिसका नाम है लूत। जब अब्राहम ने लूत से बोला तुम्हें जहां जाना चले जाओ, उसके अगेंस्ट में जाऊंगा। बाइबल कहती है उत्पत्ति उसका 13वें अध्याय में लूत ने सदोम की भूमि को देखा। उसने देखा बहुत तराई के स्थान है, उसने देखा वहां पे झरने बहते हैं, उसने देखा वहां पे पानी है सिंचाई के लिए, उसने देखा वहां की भूमि बहुत उपजाऊ है। उसने सब कुछ ऊपरी चीजों को देखा, लेकिन वो नहीं देख पाया जो वहां पर और था। वो चीज उसकी आंखों से छुपी रही। और बाइबल ऐसा कहती है उसकी 13वीं उत्पत्ति 13:13 में, सदोम के दुष्ट लोगों की वो ये नहीं देखा कि सदोम के लोग दुष्ट हैं जो यहोवा के लेखे में दुष्ट गिने गए। वो दुष्ट लोगों को नहीं देख पाया। जब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेके चीज़ों को चुनते हैं, कई बार जब हम परमेश्वर के वचन से बाहर जाके, परमेश्वर के वचन से अलग होकर, जब हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाके कार्यों को करते हैं, तो हमारी आंखों से वो चीज़ छिपी रहती हैं और उन चीज़ों को हम नहीं देख पाते। लेकिन ऊपरी सुंदरता को, ऊपरी चीज़ों को देखते हैं और फिर हमें नुकसान उठाना पड़ता है। लूत अपना सब कुछ उसने खो दिया। लूत ने अपना सब कुछ खो दिया। क्यों? क्योंकि उसने ऊपरी चीज़ों को देखा। लेकिन जब हम परमेश्वर में पाए जाते हैं, जब हम परमेश्वर में छुपे रहते हैं, जब हम परमेश्वर में एक हो जाते हैं, तो वो परमेश्वर हमें लेके चलता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ही विल लीड अस। वो हमारी अगुवाई करेगा, वो हमें आगे लेकर चलेगा और हम परमेश्वर की आशीषों को देख पाएंगे। सो बी लाइक जीसस, डिपेंड ऑन हिम। यीशु मसीह जैसे बनिए। यीशु मसीह के वचन को अपने अंदर भर के रखिए और यीशु मसीह में बदलते चाहिए। भजन संहिता 23:3, भजन संहिता 23:3, भजन संहिता 23:3 में ऐसा लिखा है, वो मेरे जी में जी लेके आता है। कौन? परमेश्वर अब मेरे जी में जी लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर से भर गया हूं। इंग्लिश बाइबल कहती है, ही रिस्टोर्स माई सोल। हर एक चीज़ जो हमने खो दी है, हर एक चीज़ जो आत्मिक रूप में हमारे पास से चली गई है, हर एक चीज़ जो हमने पाप के कारण, सेल्फिश डिज़ायर के कारण खो दी है, डेविड कह रहा है, गॉड हैज़ रिस्टोर्ड एवरीथिंग इन माई लाइफ। वो मुझे हरी हरी स्थानों पे लेके जाएगा, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास लेके जाएगा, वो मेरे जी में जी लेके आएगा, वो अपने धर्म के कामों के निमित्त मेरी अगुवाई करेगा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर जाऊं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे लोसोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आप अगर एक एक वर्ष को पढ़ें, हर जगह परमेश्वर आगे आ गया। क्यों? क्योंकि दाऊद को वो प्रकाशन मिल गया, आई लिव नो मोर बट गॉड लिव्स इन मी। दाऊद को वो प्रकाशन मिल गया कि जैसे परमेश्वर के पुत्र ने अपने आप को शून्य कर दिया, उसने भी अपने आप को शून्य कर दिया। अब वो सिर्फ एक मेमना बनकर उस चरवाहे के पीछे पीछे जाने लगा। और जैसे ही उसने उसको अपना चरवाहा माना और उसके अधीन में अपने आप को कर दिया और उसके स्वरूप में अपने आप को बदलने के लिए यत्न करने लगा, बाइबल कहती है हर जगह परमेश्वर अब आगे आ गया है। परमेश्वर उसे चराइयों में ले जा रहा है, सुखदायी जल के झरने के पास ले जा रहा है। परमेश्वर उसके जी में जी लेके आ रहा है। परमेश्वर अपने नाम के निमित्त उसकी अगुवाई कर रहा है। नाउ एवरीवेयर यू विल सी गॉड इन फ्रंट। अब हर जगह आप देखेंगे परमेश्वर आगे है, दाऊद उसमें होके पीछे है। विश्वासियों, बहुत ज़रूरी है हम परमेश्वर में बदलते जाएं, परमेश्वर के स्वरूप में बदलते जाएं। हमारा फ्लेश और फ्लेश की कोई भी बात हमारे अंदर ना पाई जाए। इन कठिन दिनों का हम सामना बिना परमेश्वर के नहीं कर पाएंगे। अकेलेपन का सामना बिना परमेश्वर के नहीं कर पाएंगे। घटी कमियों का सामना बिना परमेश्वर के नहीं कर पाएंगे। जब हम यहोवा से भर जाएंगे, हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। और यही बात दाऊद यहाँ पर हमें और आपको सिखा रहा है। कलीसिया, दाऊद हमें बता रहा है, इफ़ यू आर फुल ऑफ जीसस, अगर तुम परमेश्वर से और यीशु मसीह से भर जाओगे, तो मैं परमेश्वर और यीशु मसीह की किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आइए आज हम अपने आँखों को बंद करें।
हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से बोले, लॉर्ड होली स्पिरिट हेल्प मी, लेट माई सेल्फ डाई। मेरा मैं मरता जाए, मेरे स्वयं की लालसाएं मरती जाए, मेरी सेल्फिश प्रेयर्स मरती चली जाए। हर जगह परमेश्वर आप मुझ में पाए जाएं, क्योंकि जिस दिन जकई के घर में यीशु मसीह आ गया, उसके अंदर से सब कुछ जो पाप था वो जाता रहा, अनफॉरगिवनेस जाती रही, धोखे का जीवन जाता रहा। और ये सारी चीजें केवल चली ही नहीं गई, लेकिन जकई ने उन लोगों से अपने रिलेशनशिप्स भी अच्छे किए। अगर हम यीशु मसीह में पाए जाएंगे तो हमारा रिलेशन परमेश्वर से भी अच्छा होगा और लोगों से भी अच्छा होगा, क्योंकि ये यीशु मसीह का स्वभाव है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम अपनी ताकत में होकर आप में नहीं बदल सकते, लेकिन पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करिए, हमारी हेल्प करिए। हम प्रभु यीशु मसीह आप में बदलना चाहते हैं, हम आप में बदलना चाहते हैं। हम आपकी वो भेड़ हैं जिसे आपने अपने हाथों में रखा, लेकिन आप चाहते हैं हम हाथों से आगे बढ़ के आपके भूसम में आप में एक हो जाएं। अनुग्रह कर, हमारे अंदर वो भूख, हमारे अंदर उस प्यास को दे यीशु मसीह। पवित्र आत्मा हमें तैयार कर, ताकि हम यीशु मसीह में एक हो जाएं, ताकि हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाए, हमारी पहचान यीशु मसीह हो जाए। जैसे मार्था विंग्स जब चलती थी, काम करती थी, बहुत से लोगों ने उसके बारे में गवाही दी, वी सॉ जीसस, वी सॉ जीसस क्लेंजिंग द यूटेंसिल्स, वी सॉ जीसस वॉकिंग ऑन द रोड बाइंग ग्रोसरीज। हमारे अंदर से भी यीशु मसीह सिर्फ आप दिखाई दें। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, दया कर, हमारे अंदर से सब मैं जाता रहे, क्रूस पर मेरा मैं खत्म हो जाए और प्रभु यीशु मसीह, पुनरुत्थित यीशु मसीह मुझ में पाया जाए और मैं उसमें पाया जाऊं। प्रभु हम सबों पर अनुग्रह कर, हम सबों पर दया कर, ये वचन हमें काटे और छाटे और हम प्रभु यीशु मसीह में बदलते जाएं, उसके स्वरूप में बदलते जाएं। धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा फादर। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन। आइए अब समय है हम प्रभु की मेज में शरीक हों। जितने विश्वासी लोग हैं, आपने अपने घरों में रोटी और जूस को रखा है, उसे अपने हाथों में ले लें और अब हम प्रभु की मेज की विधि में चलेंगे। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पौलुस ने यूँ लिखा कुरिन्थियों की पत्री में, उसने कहा जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को याद करते हो। क्यों मैं और आप प्रभु की मृत्यु को याद करते हैं? क्योंकि प्रभु की मृत्यु में, उसके संदेश में सामर्थ पाई जाती है। यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान में मेरे और आपके लिए छुटकारा पाया जाता है। यीशु मसीह के दुख उठाने में मेरे और आपके लिए चंगाई पाई जाती है। यशायाह 53 में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। हालेलुया। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारे दिलों में इस समय धन्यवाद हो, प्रभु के प्रति आदर और सम्मान हो, क्योंकि उसने उस क्रूस पर जाकर मेरे और आपके लिए वो बलिदान इसीलिए दिया ताकि मेरा और आपका उद्धार हो सके। मैं एक दो जगह आपको सिर्फ स्मरण दिलाऊं। भजन 105 उसके 37वें पद में लिखा है, जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र में से निकाल कर लाया, और आपको याद है वहाँ पर भी प्रभु भोज की तस्वीर हमें मिलती है, क्योंकि उन्होंने रात में उस मेमने को बलिदान किया था और उसके लहू को अपनी चौखट पर लगाया था और अगले ही दिन उनका छुटकारा हो गया था। सो भजन 105 और 37 में लिखा है, जब प्रभु उनको वहाँ से निकाल कर लाया तो उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था, कोई भी रोगी नहीं था। ये बहुत बड़ी आशीष है जो प्रभु अपनी मेज पर अपने बच्चों को देता है। उसकी चंगाई मेरे और आपके लिए उपलब्ध हो जाती है। सो आज जब आप प्रभु की मेज में शरीक हो रहे हैं, अगर आप बीमार हैं या कोई व्यक्ति दुर्बल है, चाहे आत्मिक रूप से ही आप कमजोर महसूस कर रहे हो, आज प्रभु से उस ताकत को मांगिए।
आज प्रभु से कहिए, लॉर्ड, जब आप इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर लाए और उन्होंने आपके इस फसह को मनाया, तो उनके अंदर आपकी सामर्थ भर गई, उनके शरीरों में आपकी सामर्थ भर गई, उनको शिफा, उनको चंगाई मिल गई। हालेलुया। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं आपको, सोचिए 450 साल, लगभग 430 साल वो गुलामी में थे, और उस गुलामी में, कठिन परिश्रम में उनके शरीर कमजोर पड़ गए होंगे, बीमारियां उनको घेर ली होंगी, लेकिन जब उन्होंने इस फसह में विश्वास से हिस्सा लिया तो वो चंगे हो गए। आज हम विश्वास करते हैं इस मेज में प्रभु की चंगाई भी आपको मिलेगी, प्रभु की ताकत भी आपको मिलेगी, और वो बहुत सारी आत्मिक आशीषें प्रभु आज आपको देगा। यूहन्ना 6 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी इस मेज में हिस्सा लेगा अनंत जीवन उसका बना रहेगा, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। फिर यीशु ने कहा, वो मुझ में और मैं उसमें स्थिर बना रहूंगा। सो आइए अपने आप को तैयार करें और हम प्रार्थना में जुड़े। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से इस समय हम कहें, प्रभु, हम उसी विश्वास से आज आपकी मेज में आए हैं, क्योंकि हमको भरोसा है, लॉर्ड, वी बिलीव कि आपकी मेज में, आपके क्रूस के बलिदान में आज भी वो सामर्थ पाई जाती है, वो चंगाई की सामर्थ, वो छुटकारे की सामर्थ, पापों को क्षमा करने की वो अद्भुत सामर्थ प्रभु आपके बलिदान में पाई जाती है। प्रभु, आज आप हमको अपनी इस मेज में ग्रहण करें और हम सबको अपनी ताकत से और अपनी आशीषों से भर दें। अब आइए हम उस रोटी को ले लें जो हमने अपने घरों में तैयार की है, और उस कटोरे को भी ले लें जो हमने तैयार किया है, और इसके लिए प्रभु की आशीष मांगे। प्रभु जी, हम इस रोटी पर और इस कटोरे पर आपकी आशीष बोलते हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, आपने अपने हाथों में रोटी ली और आपने धन्यवाद करके उसे तोड़ा और आपने उन्हें दिया, ये कहते हुए, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। फिर आपने उस कटोरे को लिया और उस पर आशीष दी और आपने कहा, ये मेरा लहू है, उस नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे निमित्त बहाया जाता है। प्रभु, आज इस रोटी पर और इस कप पर जो आपके लोगों ने अपने घरों में तैयार किया है, आप अपने हाथ को बढ़ाकर आशीष दे दें प्रभु जी। प्रभु, आपकी वही आशीष आ जाए जो उस दिन आपने अपने उस रोटी और कटोरे पर दी थी, जब आप अपने चेलों के साथ उस फसह को मना रहे थे। और आज जब आपकी कलीसिया, आपके बच्चे इसमें हिस्सा लेते हैं प्रभु जी, आपकी वो सारी आशीषें, आपके जीवन की आशीष, चंगाई की आशीष, सामर्थ की आशीष आपके लोगों को बहुतायत से मिल जाए। हम धन्यवाद देते प्रभु, और बड़े धन्यवाद और बहुत आराधना के साथ आज इस मेज में प्रभु हम सम्मिलित होते हैं। आप हमको इसमें ग्रहण करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब उस रोटी को आप तोड़ लें और आपस में जितने भी विश्वासी लोग हैं, आप परिवार में एक दूसरे के साथ उसको बांट लें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ लिखा, उसने धन्यवाद के साथ उस रोटी को तोड़ा। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इस रोटी को बांट लें, और आइए हम सब एक साथ इस रोटी में शरीक हों। उस कप को भी ले लें जो आपने तैयार किया है, और आइए विश्वास के साथ कि ये कटोरा, ये कप हमें हमारे यीशु मसीह के उस बहाए हुए लहू को याद दिलाता है। हम सब धन्यवाद के साथ जितने विश्वासी लोग हैं इसमें सम्मिलित हों। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए मिलकर धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू प्रभु कि आप उस क्रूस पर गए मेरे पापों के लिए, मेरे छुटकारे के लिए, मेरी चंगाई के लिए। प्रभु, आपने उस क्रूस पर अपना बलिदान दिया, और आज प्रभु हम आपको उसके लिए धन्यवाद और धन्यवाद कहते हैं, और ये दुआ करते हैं प्रभु जी कि आपकी सामर्थ निरंतर आपके बच्चों के जीवनों में निरंतर बढ़ती बढ़ती और बढ़ती जाए। अगर कोई किसी रीति से भी कमजोर महसूस कर रहा है, चाहे शारीरिक दुर्बलता हो या आत्मिक दुर्बलता हो, या कोई जरूरत हो, कोई आवश्यकता हो,
हम दुआ करते प्रभु आज आपकी मेज पर आपके बच्चों के लिए सब बातों की पूर्ति हो जाए, वो मिरेकल हो जाए प्रभु जी, जो आपके बच्चों को आज जरूरी है प्रभु जी, उनकी नीड पूरी हो जाए अद्भुत तरीके से प्रभु जी, आपके प्रयोजन आपके बच्चों के जीवनों में आ जाएं और आपके लोग बड़े आनंद से भर के आपकी महिमा कर सकें और कह पाएं, ओ कितना धन्य है हमारे प्रभु की मेज में शरीक होना। प्रभु हम धन्यवाद देते आज की पूरी सभा के लिए, आराधना के लिए, और एक बार फिर से उन सबको याद करते जो किसी ज़रूरत में है प्रभु जी, चाहे इस कोरोना वायरस की वजह से पीड़ित हो या किसी भी ज़रूरत में हो। प्रभु आपका अनुग्रह एक एक के लिए जारी हो, एक एक की सारी ज़रूरतें आप में पूरी हो जाएं। प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद पूरी आराधना में हमसे बात करने के लिए और हमें आशीष देने के लिए। सारी महिमा, आदर, धन्यवाद, स्तुति सिर्फ और सिर्फ प्रभु हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ जब तक मसीह दोबारा नहीं आता होती रहे, आमीन आमीन। याद रखिएगा मेहरबानी से इसी सप्ताह 11, 12, 13 फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम सब मिलकर के उस जलसे में शामिल होंगे। कलीसिया को 78 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बहुत बड़ी आशीष है जो प्रभु ने हम सबको दी है और हम सब क्या कहें, हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं, हम सौभाग्यशाली लोग हैं। हम देख पा रहे हैं इस वर्ष को और इस समय को, और अब हमारी जिम्मेदारी है चर्च कि हम मिलकर अपने प्रभु को वो योग्य धन्यवाद दें जो काम उसने किया 78 वर्ष, उनको याद करके दिल से हम प्रभु के लिए गाएंगे, बजाएंगे, प्रभु की महिमा स्तुति करेंगे और साथ ही परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के दासों के द्वारा सुनेंगे। सो प्लीज तैयार रहें, समय से जुड़े, दूसरों के साथ भी शेयर करें और हम मिलकर के 11 तारीख को और 12 और 13 को मिलकर हम जलसा मनाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। गॉड ब्लेस यू।